हेलो जी। स्वागत है आप सभी का केस स्टडी 3 के सॉल्यूशन वीडियो में। पहली दो केस स्टडीज अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। आइए फटाफट से इस केस स्टडी को भी देख के ख़त्म कर देते हैं जी। हाँ जी सर, आ जाइए। प्रथा के मुताबिक हम सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे की तरह। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंसिडरिंग मैटर स्टेटेड इन वन, जो हमने नहीं पढ़ी अभी तक, रिलेटिंग टू शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स, मतलब टीडीएस का एमसीक्यू है। फ्रॉम पेमेंट्स मेड टू बीसीसीएल बाय सर्वे टीम इन द शो कॉज नोटिस, मतलब अपनी एंटिटी को शो कॉज नोटिस आया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब टीडीएस का कोई शो कॉज नोटिस आया है, ठीक है, इतना इंट्यूशन मिला। The survey team has raised an issue of application of inappropriate rate while deducting TDS from payments made to certain companies providing clearing and forwarding services at JNPD Navasheva, Mumbai. Navasheva एक वो पोर्ट का नाम है। Which of the following statements is likely to be correct? ठीक है, ये भी TDS का क्वेश्चन है। It was pointed out in the show cause notice that FST Limited has failed to deduct tax on payment made to a company owning exhibition center in Mumbai for a makeshift stall and use of furniture. Makeshift stall मतलब temporary तंबू बोलते हैं, जो मेले वगैरह में जो temporary stall लगता है ना, उसको makeshift stall बोलते हैं। Which of the following statement is in accordance with the law in this regard? ठीक है, ये भी TDS का क्वेश्चन है। As regards to destruction of stock of raw material in fire in the month of April 23 is concerned, which statement is most appropriate? ठीक है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी का क्वेश्चन है, इसका तो आंसर यही टिक कर सकते हैं, लेकिन धैर्य रखो। The team has raised the issue of non-payment of GST on availing services of a security agency described in the case study under RCM. Which of the following is true in this regard? RCM का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट दो जीएसटी का और पहले तीन है टीडीएस के, इनकम टैक्स के, ठीक है। The survey team has raised the matter regarding non-deduction of tax at source on ocean freight to shipping agents of non-resident foreign shipping companies in its show cause notice. How can CAT defend the company while preparing reply to show cause notice as far as the issue is concerned? Quote relevant provisions in the law, including notification circulars on this subject matter. ठीक है। The GST team has pointed out that the company is required to reverse ITC on common input services relating to exempt supplies on duty credit scripts. What is your opinion considering considering the issue for relevant provisions of the law? तो भाई एक चीज समझ में आई कि टीडीएस प्लस जीएसटी का क्वेश्चन है, टीडीएस इनकम टैक्स का और अपना जीएसटी, ठीक है। अब पढ़ते हैं केस स्टडी। FST Limited is concerned क्या बोलते हैं सर, engage in the business of manufacturing and export of ready-made garments like t-shirts, skirts, tops and similar casual wear. CAT is a statutory auditor of the company and also provides tax consultancy services. अच्छा, एक एक चीज ध्यान दो, अगर तुम लोगों ने ये पहले पढ़ा होता ना तो तुम ये सोचने चल जाते कि यार ये ऑडिटर टैक्स कंसल्टेंसी दे सकता है या नहीं, सेक्शन 144 ऑडिट में नहीं जाना है, क्यों, रिक्वायर्ड पार्ट पहले पढ़ लिया, फिर ये तो नॉइस है ना। On a Monday morning, he had gone to the company's office located in Noida for participating in a pre-arranged meeting with certain key directors of the company on some matters. The said location also houses company's manufacturing facility. Story बन रही है, कुछ खिचड़ी बन रही है। Barely had the meeting started, a team of 3 officers of income tax department descended upon the company's premises to conduct a TDS survey under the Income Tax Act 1961. भाई बंदे आ गए क्या करने, TDS survey. After completing the necessary formalities, they asked for the financial statements of last 3 years and evidence of TDS returns filed during those periods. Thereafter, they took control of the systems of the company containing its books of accounts. Meanwhile, the directors of the company requested CAT to stay there and help them out in this situation. मतलब हम CA हैं, हम क्लाइंट के पास गए थे हाई हेलो करने, वहां पे TDS सर्वे स्टार्ट हो गया था, हम उधर फंस गए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। After perusing company's accounts, books, documentary evidence, including bill for few hours, the team summarized the following points: purported lapses by the company in the matter of TDS deduction and incidental issues. मतलब TDS सर्वे करने जो टीम आई थी उन लोगों ने ये lapses आपको बताया, तो इनकम टैक्स के इश्यूज है, ठीक है। It was pointed out that company had made payments during these years to Bharat Container Corporation Limited, a government-owned PSU. The said company operates container cargo services and its terminal is linked with all rail lines to various gateway ports, including one at JNPT Nhava Sheva, Mumbai. ठीक है, मतलब मेरी कंपनी ने एक गवर्नमेंट ओन पीएसयू को पेमेंट किया है और वो पीएसयू क्या करता है, सारे जो पोर्ट्स है वहां से रेलवे तक माल लेके जाता है, ठीक है, कंटेनर का काम करता है, ठीक है।
कंटेनर कार्गो सर्विसेज का काम करता है। FST लिमिटेड सेंड्स इट्स एक्सपोर्ट बाउंड कार्गो यूटिलाइजिंग द अबव PSU सर्विसेज। मतलब मैं कंपनी हूँ, मैं BCCL को बोलता हूँ कि मेरी जो फैक्ट्री है उसके पास में जो रेलवे स्टेशन है वहां से एक्सपोर्ट का कार्गो तू JNPT नावा शेवा तक लेके जा, ठीक है। मैं ऐसी सर्विसेज उस PSU की अवेल करता हूँ, ठीक है। On going through bills raised by BCCL on FST Limited, it was observed that these pertain to charges levied by BCCL for handling containers, road transportation and railway freight। मतलब उस बिल के ब्रेकअप में पता चला कि हैंडलिंग कंटेनर्स, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे फ्रेट का चार्जेस BCCL ने कंपनी से लिया। I'm sorry. The team has pointed out that the tax has been short deducted on the above payments made to BCCL, ठीक है। फर्स्ट इश्यू ध्यान देना, कंपनी BCCL की सर्विसेज अवेल करती है। BCCL ने हमको चार्ज किया है 3 चीजों के लिए, हैंडलिंग कंटेनर्स, रोड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड रेलवे फ्रेट। और जो सर्वे टीम है वो ये बोल रही है कि इसमें आपने शॉर्ट टैक्स डिडक्ट किया है, शॉर्ट टैक्स, ठीक। आगे देखते हैं। FST Limited has made payments during these years to certain companies, normal companies, providing clearing and forwarding services for carriage of goods। अच्छा, clearing forwarding क्या होता है अपन आगे देखेंगे। The team has pointed out that the tax has been deducted on these payments at inappropriate rates, leading to short deduction of tax, ठीक है। The team insists that these payments are in the nature of brokerage and warrant deduction at 5%। हमने किसी कंपनी की क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग सर्विसेज को अवेल किया है एंड सर्वे टीम बोल रही है कि इस पे 5% से TDS कटना चाहिए, आपने कुछ तो भी रेट से काट, ठीक है। FST Limited has also recently participated in a fair in Mumbai in 2023-24 and has had paid charges of 5 lakhs towards makeshift stall and use of furniture in an exhibition center owned by a company। मैं कहीं पे फेयर में गया था और उन लोगों का फर्नीचर यूज करने के लिए मैंने उन लोगों को 5 लाख रुपए दिए। द टीम पॉइंटेड आउट नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय FST ऑन द सेम। During the survey, the team stumbled upon service bills of few clearing and forwarding agents. These agents were acting as shipping agents of non-resident ship owners। Non-resident, ऊपर के पॉइंट में मैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग ले रहा था रेसिडेंट, इधर नॉन रेसिडेंट शिप ओनर्स जो पोर्ट पे माल लेके आए उसके कंटेक्स्ट में मैं किसी कंपनी से क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग ले रहा था, उसके बिल मुझे जो TDS सर्वे टीम है उसको मिले। FST Limited had paid ocean freight to these shipping agents of non-resident shipping lines। The team had pointed out that tax has not been deducted on ocean freight paid to these shipping agents। मतलब 4 चीजें TDS के सर्वे में बाहर आई। नंबर 1 BCCL को पेमेंट, नंबर 2 क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का, नंबर 3 मैंने फर्नीचर यूज किया और उसका TDS, एंड नंबर 4 सर्वे में मुझे ओशन फ्रेट के बिल्स मिले जो मैंने नॉन रेसिडेंट शिपिंग लाइन के एजेंट को पे किए थे। मतलब मैंने इन शॉर्ट नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी को फ्रेट पे किया। इसमें मैंने क्या पे किया सर, कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी को मैंने फ्रेट पे किया और इस पे TDS मैंने नहीं काटा है, ठीक है, ऐसी बात है। बिफोर लिविंग द टीम रेज शो कॉज नोटिस रिलेटिंग टू अबव इश्यूज। मतलब TDS सर्वे खत्म हो गया, 4 चीजें TDS सर्वे TDS के ऑफिसर्स ने अपन को बोली, ठीक है। Just when he was working on preparing the reply on the above show cause notice after few days at his office, CAT received a copy of notice forwarded by the company। The said notice was issued by Superintendent Anti-Evasion CGST Division, informed that the exporter company has been flagged as a risky exporter on the basis of risk analysis by DGARM। The said notice contained a long list of documents submitted by the company including GSTR 9, 3B1, reconciliations of ITC reflecting on portal, reconciliation of EVA bills issued with GSTR1, financial statements of past years। The company is exporting goods on payment of GST। दो ऑप्शन होते हैं, पेमेंट पे और विदाउट पेमेंट पे। The export bound shipment attract GST at 5%। Subsequently, the departmental team also visited the premises of the company। TDS का लफड़ा खत्म नहीं हुआ था कि GST का लफड़ा आ गया, GST का नोटिस आ गया अपन को। GST का नोटिस क्या बोल रहा है, on going through the documents submitted by the company and after conducting a necessary verification, the team, कौन सी GST team, raised the following issues। The team pointed out that the fabric, which is the main raw material for manufacturing of garments having taxable value of 50 lakhs, attracting GST at 5%, was destroyed in fire in the premises of the company in the month of April 23। The company has availed ITC of 2.5 lakhs in the months of April 23। मतलब April 23 में goods destroy हो गए थे, मैंने उसकी ITC ले ली थी, ठीक है। आइडियली रिवर्स करनी होती है, उसका MCQ भी है। मतलब देखा, MCQ अपन पढ़ के यहाँ पे आए तो सीधा आंसर ही शूट हो गया कि 2 मार्क इधर आ गए, क्योंकि MCQ 2 मार्क का था।
The company has been availing services of a security service agency for providing it with security manpower. The company has paid amount of 10 lakhs to one such security service agency, a proprietary concern. देखो RCM में सिक्योरिटी फ्रॉम अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट का पॉइंट है, ठीक है, उसके रिलेटेड है. During the year 23-24 up to the date of team's visit, it insisted that the company was required to pay GST on such services under RCM basis. ठीक है. It has been pointed out that company is receiving duty credit scripts under foreign trade policy of the government by virtue of being export trade. These duty scripts in turn have been sold by the company to third parties. Duty scripts अपन बेच सकते हैं. Supply of such duty scripts have been exempted under GST under notification 35 of so and so. The team pointed out that the company is required to reverse ITC on common inputs relating to such exempt supplies. देखो exempt supplies का जो ITC होता है वो रिवर्स करना पड़ता है. मैंने स्क्रिप्ट्स बेची है और स्क्रिप्ट्स एग्जेम्प्ट है, तो जो टीम है जीएसटी की वो बोल रही है कि इसका भी आईटीसी रिवर्स करना चाहिए आपको. Assume income tax law for FY 23-24 AY 24-25 is applicable in situations involving past years. Ignore surcharges. केस स्टडी यहाँ पे खत्म हुई. अच्छा थोड़ी लंबी लगी बिल्कुल, लेकिन पहले अगर एमसीक्यू पढ़ ली है ना तो अपन डेटा को ढंग से सेग्रीगेट कर पाए कि ये इनकम टैक्स का है, ये जीएसटी का है. तो ठीक है, 1 मिनट सांस ले लो, पूरा एक बार केस स्टडी पढ़ो. मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग्स कर रखे हैं, वो मार्किंग्स आप खुद कर लो एंड देन वी विल मूव टू द सोल्यूशन. बहुत फटाफट हो जाएगा सोल्यूशन. ठीक है, ठीक है, पढ़ लिया? यस सर पढ़ लिया. ठीक है. Considering matters stated in number 1, stating short deduction of tax from payment made to BCCL by survey team in their show cause notice, which of the following statements is most appropriate in this regard? ठीक है, आपको कैरेज के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सेक्शन एप्लीकेबल होती है टीडीएस की वो है 194C. 194C में वर्क की डेफिनेशन दी है, वर्क की कि कौन कौन से काम पे आपको टीडीएस काटना है. उसमें थर्ड या फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन. उसमें एक एक्सेप्शन डाला है, ट्रांसपोर्टेशन अदर देन रेलवे. सर कहां से पढ़ रहे हो? मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप डीटी के मॉड्यूल में पढ़ लेना. 194C, रेफर टू सेक्शन 194C, डेफिनेशन ऑफ वर्क. इंक्लूड्स, ये थर्ड पॉइंट है, इंक्लूड्स कैरेज ऑफ गुड्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज. तो जो रेलवे फ्रेट में पे करता हूं उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. ऐसा कौन बोल रही है? सेक्शन 194C. वापस से सेक्शन 194C पढ़ना है, उसमें वर्क का डेफिनेशन पढ़ना है, उसमें थर्ड पॉइंट पढ़ना है, इंक्लूड्स कैरेज ऑफ गुड्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अदर देन रेलवेज. तो रेलवेज पे टीडीएस नहीं लगेगा. अब चार ऑप्शन पढ़ते हैं. टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन हैंडलिंग चार्जेस एंड रेलवे फ्रेट, जिसमें नहीं लगेगा तो ऑप्शन गया. टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे, रेलवे पे नहीं लगता, गया. टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन हैंडलिंग चार्जेस, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे, ये भी नहीं ऑप्शन गया, तो डी ऑप्शन है. सिंपल सिंपल सा पॉइंट है कि अदर देन रेलवे बोला है तो 194C रेलवे फ्रेट पे नहीं लगती, तो रेलवे फ्रेट पे कोई और सेक्शन भी नहीं लगती, तो टीडीएस नहीं लगेगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आंसर दे रखा है यहाँ पे एंड में. ठीक है, मैं यहाँ से काट देता हूँ बिकॉज व्हेन आई विल शेयर द कॉपी ऑफ पीडीएफ तो फिर आपको थोड़ा सा देखने में इजी रहेगा. क्वेश्चन ऊपर, आंसर्स नीचे. ठीक है. सेकंड, the survey team has raised issue of application of inappropriate rate while deducting tax from payment made to certain companies providing clearing and forwarding services at JNPT Nhava Sheva. Which of the following statement is likely to be correct? अच्छा, एक ध्यान देना. टीडीएस टीम क्या बोल रही है कि मैंने जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस पे किए, इट इज इन द नेचर ऑफ व्हाट? ब्रोकरेज. अच्छा, ब्रोकरेज पे टीडीएस की कौन सी सेक्शन लगती है? सर यहाँ जाओ, यहाँ जाओ. ब्रोकरेज पे सर टीडीएस की कौन सी सेक्शन लगती है? 194H. ध्यान देना, थोड़ा एनालिटिक पार्ट है, ध्यान देना. 194H में बोला गया है टीडीएस ऑन कमीशन ऑफ ब्रोकरेज. तो कमीशन ऑफ ब्रोकरेज की डेफिनेशन है 194H में, क्या है यहाँ पे देखना. कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट received or receivable directly or indirectly by a person acting on behalf of another person for services rendered or for services in course of buying or selling of goods. See, course of buying or selling of goods मतलब सेलिंग ऑफ सर्विस और कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स में कोई आदमी अगर मुझे फैसिलिटेट कर रहा है एंड मैं उसको कमीशन और ब्रोकरेज या एनी पेमेंट दे रहा हूं तो उस पर 194H में टीडीएस आएगा. ठीक है. और इन रिलेशन टू एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट, वैल्यूएबल आर्टिकल, थिंग अदर देन सिक्योरिटीज. अब एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट करता क्या है?
आप अगर वो समझोगे तो आपको ये समझेगा कि भाई इसमें टीडीएस का क्या इम्प्लीकेशन आएगा। ध्यान देना, मेरा फैक्ट्री है सपोज अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद के साणंद एरिया में मेरा फैक्ट्री है, और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ सपोज मुंबई पोर्ट से, नावा शेवा से। अब मेरा बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सपोर्ट कार्गो मूव होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट रोज एक एक्सपोर्ट कार्गो निकलता है। तो क्या मैं मेरी ऑफिस में से रोज एक बंदे को भेजू के ये कार्गो कस्टम्स में से क्लियर करवा ले, ये क्लियर करवा ले, ये क्लियर करवा ले, तो फिर मेरे बिजनेस में कौन ध्यान देगा? क्योंकि कस्टम्स के जो प्रोसीजर होता है वो बहुत हेक्टिक और हेफ्टी होते हैं, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है। तो मैंने क्या बोला, नावा शेवा में एक बंदे को पकड़ा कि एक काम कर, मैं तुझे अपना कार्गो भेज दूंगा ऑन अ डेली बेसिस और वीकली बेसिस और वॉट एवर, सारा कस्टम्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तू करना मेरे बिहाफ पे, सारा कस्टम्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तू करना मेरे बिहाफ पे, ठीक है, और तुझे जो पैसे चाहिए वो ले लेना। ठीक है सर। अब क्या इसमें परचेस और सेल ऑफ गुड्स फैसिलिटेट हो रहा है या सिर्फ मूवमेंट? सर सिर्फ मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स फैसिलिटेट हो रहा है कि मैं यहां से, देखो सेल तो हो गया, एक्सपोर्ट एक्चुअली मेरा सेल हो गया है, एक्सपोर्टर जहां पे जिस जो पार्टी वहां पे इंपोर्ट कर रही है उसने अग्री कर लिया है कि तू यहां से मुझे भेज दे। अब सिर्फ मूवमेंट फैसिलिटेट हो रहा है गुड्स का, ना कि सेल, क्योंकि सेल तो मैंने इंपोर्टर के साथ पहले ही अग्री कर लिया। तो सर कमीशन और ब्रोकरेज में जो डेफिनेशन में जो पार्ट है वो ये बोलता है फॉर सर्विसेज इन कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर मैं पैसे फॉरेन कंट्री में बैठे किसी एजेंट को देता कि तू मेरा सेल फैसिलिटेट कर, मुझे वहां से तू कस्टमर ढूंढ के दे, तो 194H आता। सर 195 भी आ सकता है बिकॉज फॉरेन, बट अभी के लिए वो भूल जाओ। 194H तो ही आता जब कोई एजेंट मेरे लिए माल बेच रहा है, ना कि माल का मूवमेंट कर रहा है। तो सर 194H का जो कमीशन का डेफिनेशन है ना, वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट पे नहीं लगता। ये हो गया एनालिसिस का पार्ट। अब दूसरा ध्यान दो, सीबीटीटी ने इस इश्यू पे बहुत पहले एक सर्कुलर दे दिया है जो बोलता है 194C नहीं लगेगा, सॉरी 194C लगेगा, 194H नहीं लगेगा। और ये सर्कुलर मॉड्यूल में नहीं दिया है, केस स्टडी के आंसर में दिया है। तो ध्यान दो, मॉड्यूल में कोई सर्कुलर नहीं है, ठीक है, उसका रेफरेंस केस स्टडी में आ गया, तो केस स्टडी को भी ध्यान से पढ़ना पड़ता है, आंसर्स ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। तो क्या बोला कि 194H क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज मैं जो कमीशन पे कर रहा हूं जिस एजेंट को, ही इज नॉट फैसिलिटेटिंग अ सेल, ही इज फैसिलिटेटिंग अ मूवमेंट। तो उस पे 194C में टीडीएस कटेगा, ना कि 194H में। और 194C का टीडीएस का रेट क्या है सर? 1% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, 2% इन केस ऑफ अदर एसएससी, और ये अदर एसएससी है, तो इस पे 2% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो 5% पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, 2% पे आएगा, एंड नॉट 5%, 5% पे नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर इसका पढ़ लेना, मैंने जो समझाया है वही इंस्टीट्यूट ने लिखा है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट ने उस सर्कुलर का पूरा नंबर लिखा है, मैं वो पूरा नहीं बता रहा बिकॉज बहुत पुराना सर्कुलर है, बट वो सर्कुलर क्लैरिफाई कर चुका है, एंड वो सर्कुलर आपकी डीटी की मॉड्यूल में नहीं है, तो आप ढूंढने मत बैठना, ठीक है। कूल, ये अच्छा पॉइंट था। MCQ number 3. It was pointed out in the show cause notice that FST Limited has failed to deduct TDS on payment to a company owning exhibition center in Mumbai and to making a makeshift stall and use of furniture. ठीक है, which of the following is statement is correct? अच्छा, मैंने जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया किसके लिए सर? एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए। तो मेकशिफ्ट स्टॉल वो तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट यूज ऑफ फर्नीचर। तो जो मैंने उसका फर्नीचर यूज किया उस पर टीडीएस आएगा, किसमें? 194I में। और 194I का रेट क्या है? 2% इन केस ऑफ मशीनरी एंड 10% इन केस ऑफ अदर इक्विपमेंट्स। तो इस पे टीडीएस आएगा सर 10% से। यस, ऑप्शन नंबर बी। TDS was required to be deducted at source for payment made to company owned in exhibition center. Such type of payment necessitates deduction of tax at source at 10%. Makeshift stall पे कोई TDS नहीं आएगा। TDS on rent 194I 10% in case of furniture. Makeshift stall का मतलब होता है टेम्पररी स्टॉल, ठीक है। वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, अच्छा वो फर्नीचर भी नहीं है, वो तो तंबू है भाई। तंबू पे क्या, तंबू यूज करने का जो पेमेंट किया उस पर कहाँ टीडीएस आएगा? सिर्फ मशीनरी पे, सिर्फ फर्नीचर पे आएगा, ठीक है सर। As regards destruction of stock of raw material in a fire in the month of April 23 is concerned, which of the statement is more appropriate? अच्छा, जो आपका ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन है वो ये बोलता है कि अगर आपका कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और उस पर आपने आईटीसी क्लेम किया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्सल ऑफ आईटीसी
ऑफ 2.5 lakhs बाय द कंपनी, सिंपल है ना। अच्छा ये दो ऑप्शंस भी ध्यान देना, आप थोड़ा ध्यान देना, आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। जब मैं आईटीसी रिवर्स करता हूं तो मैं उसको ऐड बैक करता हूं मेरे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। यहाँ पे सिर्फ आउटपुट लायबिलिटी बोला है, आउटपुट लायबिलिटी मतलब जो मेरा टोटल आउटपुट है ना, आउटपुट मतलब सेल्स, उसमें ऐड करो, नहीं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वर्ड यूज किया होता ना तो दूसरा ऑप्शन आ सकता था, या तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत थी। सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लायबिलिटी बोला है ना तो आपको ये ऑप्शन नहीं लेना है, आपको ये ऑप्शन लेना है। अच्छा इंक्रीजिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बोला होता तो ए और सी करेक्ट दोनों आते, करेक्ट ए और सी दोनों करेक्ट आते अगर इंक्रीजिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बोला होता। बात समझ में आई, तो ऑप्शन ए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करने का, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑफ 2.5 lakhs बाय द कंपनी, सिंपल। Last, the team has raised issue of non-payment of GST on availing services of a security agency described in the case study under RCM. Which of the following statement is true? ध्यान दो, RCM की नोटिफिकेशन पढ़ना, उसमें एंट्री है सिक्योरिटी सर्विस फ्रॉम अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, RCM लगेगा। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट RCM लगेगा। हमने किससे सर्विस ली है? इंडिविजुअल से, तो RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा इसमें ना रेट नहीं दिया, अच्छा इन लोगों को ना रेट दे देना चाहिए था ऊपर, इन लोगों ने रेट नहीं दिया और एमसीक्यू के आंसर में उन लोगों ने डाल दिया 0.5 और 1.8, इसका रेट है 18%। इन लोगों को 18% का रेट भी मेंशन करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया, एग्जाम में कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। जीएसटी ऑफ 1.8 लाख वाज टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज एंड वाज टेकन टू बिकम, ठीक है, नो क्रेडिट नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट तो मिल जाएगा ना, इसमें ऑप्शन बी आएगा। एक्चुअली इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको आरसीएम में पे करना है, और दूसरा जो गलत ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा इसका, ठीक है। तो 1.8 लाख वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर आरसीएम एंड आईटीसी ऑफ 1.8 लाख विल आल्सो बी अवेलेबल, ठीक है। गलत ऑप्शन ये बोल रहा था कि आईटीसी भी नहीं मिलेगी, आईटीसी मिल जाएगी, ऑप्शन बी। समझ में आई बात? ये अपने एमसीक्यूज खत्म हो गए। अब दो क्वेश्चन। Survey team has raised a matter of regarding non-deduction of tax at source on ocean freight paid to shipping agents of non-resident foreign shipping companies in show cause notice. How can CAT defend the company while preparing reply to show cause notice as far as issue is concerned? Quote relevant provisions of law including notification circulation on this subject matter. केस क्या है? मैंने ओशन फ्रेट पे किया है नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी को, टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? अब आप अगर टीडीएस के इम्प्लीकेशन को कभी लाइफ में एनालाइज करो ना तो जिसका टीडीएस काटना है, किसका? जिसका टीडीएस काटना है उसकी इनकम कैसे टैक्स हो रही है वो सोचो वापस से। जिसका टीडीएस काटना है मतलब जिसका सामने वाली पार्टी, ठीक है, उसकी इनकम कैसे टैक्स हो रही है वो सोचोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा। नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनीज की इनकम कैसे टैक्स होती है? तो दो तरीके से, एक तो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एनआर और एक दूसरी सेक्शन आती है सेक्शन 44B प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। अच्छा 44B क्या बोलती है? जितना भी फ्रेट इंडिया में मिला, जितना भी फ्रेट इंडिया में कलेक्ट हुआ, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, और दूसरा जितना भी फ्रेट ग्लोबली मिला फॉर गुड्स शिप्ड टू इंडिया, वापस जितना भी पैसा इंडिया में मिला और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एंड दूसरा जितना भी पैसा पूरी दुनिया में मिला फॉर गुड्स शिप्ड टू इंडिया, टोटल करो उसका 7.5% आपको इनकम दिखानी है और टैक्स पे करना है। दिस इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44B। अगर आपको ये ऑप्ट नहीं करना है यू कैन गो फॉर नॉर्मल टैक्सेशन। लेकिन टीडीएस का क्या इम्प्लीकेशन है ध्यान देना। टीडीएस में अपन ने ऊपर देखा था, ऊपर कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में सेक्शन 194C आ रही थी, 194C अप्लाई की ना हमने, यहाँ पे देखो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में हमने सेक्शन 194C अप्लाई की। लेकिन सर 194C की ओपनिंग लाइन ही ये बोलती है कि सिर्फ रेसिडेंट्स को ये सेक्शन एप्लीकेबल है, तो नॉन रेसिडेंट को तो एप्लीकेबल नहीं है, तो 194C गई। अब एक सेक्शन होती है सेक्शन 172, सेक्शन 172 जो शिपिंग बिजनेस पे एप्लीकेबल होती है, शिपिंग बिजनेस पे। अब उसकी ना मैं आपको सिर्फ ओपनिंग लाइन एक्ट में से दिखाता हूं कि भाई उसकी ओपनिंग लाइन क्या है, ध्यान देना। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, provisions of this section shall apply notwithstanding anything contained in any other provisions of this act।
पूरे एक्ट का आतंक सेक्शन 172 ने खत्म कर दिया कि शिपिंग बिजनेस पे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 172 ही लगेगी। तो सर सेक्शन 195 नहीं लगेगी। जो नॉन रेसिडेंट के टीडीएस के ऊपर बात करती थी वो सेक्शन 195 भी नहीं लगेगी, सिर्फ सेक्शन 172 लगेगी। अच्छा, सेक्शन 172 क्या है पता है? सेक्शन 172 इज अ सेल्फ कंटेन्ड कोड। सेल्फ कंटेन्ड कोड, इसमें क्या बोलता है कि जो 7.5% है वो आपको भर के जाना है। जब इंडिया से आप शिप बाहर निकालो तो पूरा पैसा भर के जाओ। शिप जाने के 30 दिन के अंदर अंदर जो मास्टर ऑफ शिप है उसको रिटर्न फाइल करना है। एंड रिकवरी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के भी प्रोविजन है। तो सेक्शन 172 में सब कुछ दे दिया है। किसके बारे में? एक ऐसी शिपिंग कंपनी के बारे में जो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो भाई ना सेक्शन 194C लग रही है ना सेक्शन 195 लग रही है। और जब शिप यहां से जाती है तब पूरा पैसा अगर दे के जाती है तो टीडीएस का सवाल ही कहां से आया भाई? तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई ऐसे ड्राफ्ट करना है कि सेक्शन 194C अप्लाइज टू रेसिडेंट, सेक्शन 172 ओवरराइड्स एवरी प्रोविजंस ऑफ दैट, तो वो 195 भी नहीं लगेगा। सेक्शन 172 इज अ सेल्फ कंटेन्ड कोड relating to recovery, collection of tax, filing of return, etc., etc. And section 172 does not mention deduction of tax at source. तो इस ट्रांजैक्शन में टीडीएस का कोई इंप्लीकेशन नहीं आएगा। आपको ऐसा शो कॉज नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। मैंने जो आपको समझाया वो सब इस आंसर में लिखा हुआ है। इस आंसर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा लंबा चौड़ा दिया है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको बताया आप एक बार पढ़ लेना। 194C यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे वापस उन लोगों ने रिपीट किया है कि 194C इज ओनली एप्लीकेबल टू रेसिडेंट। तो दो पैराग्राफ्स उसके ओवरलैप होते हैं। 172 is a self-contained code for levy, recovery of tax, ship-wise, journey-wise, and requires filing of return in maximum time of 30 days from the departure of ship. तो मैंने आपको जैसा समझाया वैसे आपको आंसर लिखना है। एनालिसिस क्या था 172 का? 172 में एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। जो नॉट विथस्टैंडिंग बोलते हैं उसको एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज बोलते हैं कि उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट आता है बाकी सारे सेक्शंस में। ठीक है, तो ये एनालिसिस पार्ट था, आप एक बार आंसर पढ़ लेना। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये था आंसर ऑफ योर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि क्रक्स क्या है, आपको एक बार आंसर पढ़ना है और खुद से लिखना है। और सी, ये अगर सेम आता है तो यू विल बी हैविंग द हैंड आउट ऑफ केस स्टडीज ना, तो आप उसमें से छाप सकते हो। सी, एंड ऑफ द डे आपको पेपर में जाके तो छापना है, बट यहाँ पे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फोकसिंग ऑन कीवर्ड्स, क्या लिखना ये वो पार्ट केस स्टडी के पेपर में आएगा ही नहीं, कितना लिखना क्या लिखना ये वो। आपको समझना है कि हो क्या रहा है, फिर आप लिख तो कितना भी सकते हो, है ना। अच्छा, इस आंसर में इन लोगों ने 44B या एनआर टैक्सेशन मेंशन नहीं किया। ठीक है, आप कर भी सकते हो बिकॉज वो चीज भी राइट है, वो पर्सपेक्टिव भी आ सकता है ना। मैंने आपको समझाने के लिए वो चीज बोली थी। The GST team has pointed up, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। The GST team has pointed out the company is required to reverse the ITC on common input services relating to exempt supplies of duty credit scripts. What is your opinion on this issue considering relevant provisions of the law? ठीक है, इसका भी मैं आपको क्रक्स बताऊंगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट क्या बोलता है कि आपकी जो ITC होगी विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू जीरो रेटेड एंड टैक्सेबल, ये बोलता है। उसके लिए वो कौन से रूल्स देता है? रूल्स 42 एंड 43। रूल 42 एंड 43 आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं फॉर दिस क्वेश्चन, आप पूरा लिखने भी नहीं वाले हो, आपको बस उसका एहसास देना है किसको? एग्जामिनर को। इंस्टीट्यूट ने भी वही किया है। रूल 42 में क्या होता है कि आप सारी ITC लेते हो, उसमें से कौन सी हटाते हो? जो नॉन टैक्सेबल के लिए होती है। उसमें से कौन सी हटाते हो? जो एग्जेम्प्ट के लिए होती है। उसमें से कौन सी हटा दो? जो आपका जिसमें अपना ITC अलाउड नहीं होता, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, वो सारा हटा के ITC का पूल क्रिएट करते हो। उसमें से आप कौन सी हटाते हो? जो कॉमन, जो एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस होती है वो भी हटा देते हो, तो आपको कॉमन इनपुट मिलता है। जो कॉमन इनपुट मिलता है उसका आप करते हो, सपोज कॉमन इनपुट है आपका C, उसका आप करते हो इंटू E/F करते हो आप। किसमें? GST में। C इंटू E/F प्रोपोर्शनेट करते हो। ये जो E है ना, ये E है एग्जेम्प्ट सप्लाईज का। इस एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया है। वापस से बहुत ध्यान दे। आप जब E/F करते हो, E/F, तो E में आप लेते हो एग्जेम्प्ट सप्लाईज का टोटल। उस एग्जेम्प्ट सप्लाईज के टोटल में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का जो सेल है उसका टर्नओवर नहीं लेना है। मतलब इनडायरेक्टली
जो वो सेल हुआ है उस पे आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है वापस से। whenever you are doing E by F, E जो exempt supplies का टोटल है उसमें you don't have to consider the turnover from sale of duty credit scripts, तो indirectly उसका जो आईटीसी है वो रिवर्स करने की जरूरत नहीं। बस इतना ही आंसर है, इतना ही आंसर है। रूल 43 में भी आप ई बाई एफ करते हो, उसमें भी ई में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको अगर मजा नहीं आ रहा हो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान दो। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 है ये आपका, ठीक है। मैं इसमें टिक मार्क नहीं कर पाऊंगा। ये रूल 43 आ गया, ये रूल 42 आ गया। सी यू आर डूइंग ई बाई एफ, तो आप जब ई बाई एफ करते हो ना, ई बाई एफ इंटू C2, ठीक है, इस ई में आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के सेल का टर्नओवर नहीं लेना है, मतलब उस पर जीएसटी रिवर्स नहीं, उसमें आईटीसी रिवर्स नहीं हो रहा है, ठीक है। वो कहां लिखा है सर, वो भी यहां पे देख लो। explanation for the purposes of rule 43 42 and this rule मतलब 43, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies shall exclude, देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, value of supply of duty credit script specified in the notification so and so। बात समझ में आई, मतलब E by F के जो E है उसमें आपको एग्जेम्प्ट सप्लाईज होने के बावजूद भी उस टर्नओवर को कंसिडर नहीं करना है, एंड आपका ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पे आईटीसी रिवर्स नहीं होगा, ये आंसर है। बात समझ में आई, ध्यान दो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, आपको क्या लिखना है। 17 सबसेक्शन 2 कुछ बोलता है क्या कि आईटीसी विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ इनपुट टैक्स एज एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड। उसमें आपको फिर रूल 42 और रूल 43 का रेफरेंस देना है। जो रूल 42 इंस्टीट्यूट ने इस आंसर में पूरा नहीं समझा है, prescribes manner of determination of ITC in respect of inputs and input services and reversal thereof। 43 का भी सिर्फ झलक दिख रहा है, ठीक है, झलक दिखला जा किया है इंस्टीट्यूट ने, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में आंसर छुपा हुआ है। उसमें देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, वो एक्सक्लूड होती है, और ये फाइनल आंसर है। Therefore, value of supply of duty credit scripts is excluded from the aggregate value of exempt supplies determined under 42 of CGST rules. Since value of supply is excluded while determining the exempt supplies under Rule 42, no ITC is required to be reversed. Institute ने कितना डेप्थ में जाके आपको पूछा है, आप सोचो। सेक्शन, रूल की एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सक्लूजन, ठीक है। अगर ये आपने समझाना होता तो आप गरबा करते, तो हमने समझ लिया। इसके ऊपर का सेक्शन भी आपने समझ लिया। इस केस स्टडी का लेवल पिछली 2 केस स्टडी से काफी अच्छा था, ये काफी अच्छी केस स्टडी थी, मुझे भी स्टडी करने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ केस स्टडी 3। मैं आपको भूले बिना इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, और आंसर्स ना मैंने बहुत शॉर्ट में आपको दिए, बिकॉज लिखना इज नॉट एन इश्यू, समझना इज एन इश्यू, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर्स बहुत शॉर्ट में दिए, आपको समझ पक्का आएगा। एंड बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट केस स्टडी के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहना, टेक केयर।